Hello students, I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So today's topic is building materials and bridges. Learning topics: constructing the buildings, building materials, bridges, utility of bridges, different types of bridges. Since ancient times, people have built shelters to give themselves a place to store their belongings and to protect themselves from weather, wild animals and enemies. In earlier times, shelters were made from simple local materials like mud, straw, wood, stones and animal hide. Modern shelters are made from durable and sturdy materials. Many people help us in building our shelters and other structures. They are also our important friends. यानी कि इस चैप्टर में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एंशियंट टाइम्स यानी कि पुराने टाइम में लोग घर बनाया करते थे और किस तरीके से अब जो घर बनते हैं वो स्टर्डी मटेरियल्स यानी कि मजबूत टिकाऊ मटेरियल से बनते हैं. Constructing the buildings. Some people who help us in construction are as follows. तो एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो लोग हमारी मदद करते हैं वो उनके बारे में अब हम नीचे पढ़ेंगे. Architect. An architect designs the buildings like houses, offices, shopping complexes, schools, bridges, etc. Drawing a design is called a plan. The plan of a house shows where each room will be built. He uses instruments like drawing boards and compasses to make his drawings. तो एक आर्किटेक्ट वो होता है जो आपके घरों की, ऑफिसेस की, मल्टीप्लेक्सेस की, शॉपिंग मॉल्स की प्लानिंग करता है, ड्राइंग करता है कि कौन सा कमरा कहाँ होगा, किचन कहाँ बनेगा या फिर बाथरूम कहाँ बनेगा. तो वो जो ड्राइंग होती है जो आर्किटेक्ट बनाता है उसको कहा जाता है प्लान. कॉन्ट्रैक्टर. A contractor looks after all the construction activities. He directs his men to do different jobs related to the construction of the building. तो कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो अलग अलग टाइप के आपके घरों में जब काम चल रहे होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती है, तो जैसे कोई ब्रिक लगाता है, कोई सीमेंट को घोलता है, तो कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो अलग अलग लोगों को बताता है कि क्या क्या काम करने हैं. द मेसन. The people who lay the pillars, walls and roofs of a house are the masons. They use very simple tools like the plumb bob, towel, hammer, mallet, spirit level and trowel to make sure that the walls are straight and the bricks are laid properly. The masons take the help of workers who make mortars by mixing cement, sand and gravel. These laborers carry bricks and mortar. तो मेसन वो होता है, इसको हिंदी में मिस्त्री कहते हैं, जो आपकी घरों की दीवारों को कंस्ट्रक्ट करता है, आपके घरों में लेंटर्स डालता है, सीमेंट को घोलता है और अलग अलग चीज़ों से आपके घर की दीवारें, फ्लोर्स और सीलिंग बनाता है. The carpenter. Carpenters look after the woodwork. They make doors, windows, cabinets and closets in a house. They use tools like saw, plane, gimlet, tri-square and many other tools in cutting and shaping the wood to make all these things. We get all these tools in a hardware shop. तो कारपेंटर आपके घरों में जो लकड़ियों का काम होता है, दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई, फर्नीचर्स हो गए, इन सब के साथ आपका जो है कारपेंटर वो काम करता है. जितने भी टूल्स होते हैं उन टूल्स के साथ ही काम करता है और ये सारे टूल्स आपको हार्डवेयर शॉप्स में अवेलेबल होते हैं. The electrician. A house also needs electricity. The electrician lays electrical wires around the house and fixes plugs and switches for electrical appliances like lights and fans. He uses tools like the screwdriver, soldering iron, wrench, etc. The handles of these tools are covered with rubber to prevent any electrical shock. तो इलेक्ट्रीशियन जो होता है आपके घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, स्विचेस होती हैं, एसीज होते हैं, फैंस होता है, इन सब की जो फिटिंग करता है वो इलेक्ट्रीशियन होता है. स्क्रू ड्राइवर्स और अलग अलग टूल्स का यूज़ करता है और यूजुअली आप देखेंगे कि इन स्क्रू ड्राइवर्स के स्टार्टिंग में जो है रबर या प्लास्टिक की कोटिंग होती है ताकि आप इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकें. द प्लम्बर. A plumber does all the sanitary fittings, example water, pipes, taps, sinks, etc. He uses various tools like pliers, pincer, wrench, spanner, pipe cutter, etc. to fix the pipes and taps. तो एक प्लम्बर जो होता है वो आपके घर की सारी सैनिटरी फिटिंग्स यानी कि आपके टॉयलेट्स हो गए, वॉशरूम में जितने भी टैप्स हो गए, पूरे घरों में जितने पाइपलाइंस आपके वाटर सप्लाई के लिए होते हैं उन सब की फिटिंग एक प्लम्बर करता है. The painter.
A painter paints the house and makes it look beautiful. A painter uses tools like rollers, spray paint guns, brushes and ladders to plaster and paint the house. तो उसके बाद आपका जब घर का पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, वॉल्स बन जाती हैं, रूफ्स बन जाती हैं, उसके बाद आपका जो पेंटर है वो आता है अलग अलग टूल्स यानी कि रोलर से, ब्रश से, स्प्रे से आपके घरों की पेंट्स को पेंट कर देता है। Building materials. Bricks. Bricks are the most commonly used material for the building construction. यानी कि वो सारी चीज़ें जो आपकी कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं। सबसे पहले आपका आता है ईंट। या आपकी जो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है वो होती है ईंट। First of all, clay is dug up and taken to a brick making plant. This clay is pounded with machines and mixed with water to form a smooth mixture. This mixture is then poured into a mold shaped like a long rectangle called a ribbon. यानी कि पहले एक मड लिया जाता है, उसको पानी के साथ मशीन में डाल के मिक्स करा जाता है, उसके बाद जो बैटर बनता है उसको एक मोल्ड में डाल दिया जाता है, जिसके बाद आपकी ईंटें बनती हैं। The machine cuts the long ribbon into blocks. These smaller pieces give the size and shape of bricks. The bricks are finally dried and then fired in a kiln. Once they are cool and become hard, they can be used for building. This was the traditional way of making bricks. Nowadays, brick making factories are more mechanized. Some of them have robots to do the work. Plants where cement, bricks and iron rods are made make the environment polluted. यानी कि जो अभी हमने तरीका पढ़ा ईंट बनाने का, ये पहले के दिनों में यूज़ करा जाता था, लेकिन आज के टाइम में अलग अलग फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे रोबोट्स भी असाइन करे गए हैं जो बड़ी ही आसानी से आपकी जो ब्रिक्स हैं उसको बना देता है। लेकिन जो ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे सीमेंट्स यूज़ होते हैं, ब्रिक्स बनती हैं, ये फैक्ट्रीज आपके एनवायरनमेंट को पल्यूट यानी कि प्रदूषित कर देती हैं। Cement. It is a kind of finely ground powder. When mixed with sand and water, it sets to a very hard mass and binds the bricks very firmly. A mixture of cement, sand, crushed stones and water is called concrete. On setting, concrete becomes extremely hard and strong. It is used for making floors, roads and pavements. जो आपका सीमेंट होता है ये एक बहुत ही अच्छी तरीके से, फाइन तरीके से रिफाइन करा हुआ एक पाउडर होता है, ग्राउंड पाउडर होता है, जिसको जब पानी के साथ आप मिक्स करेंगे, दीवारों पे लगाएंगे या फिर रूफ्स पे लगाएंगे, रोड्स बनाएंगे, पेवमेंट्स बनाएंगे, तो वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। ब्रिजेस. There are bridges made of bamboo, ropes, logs, but most of the bridges are now constructed with concrete, bricks, आयरन एंड स्टील। यानी कि आपके जो ब्रिजेस होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ बैम्बू से बने होते हैं, रोप से बने होते हैं, लेकिन आज के टाइम में आपको काफ़ी सारे ब्रिजेस ऐसे दिखेंगे जो सीमेंट से बने होते हैं, हार्ड मटेरियल से बने होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। Bridges are important because without them, we would need boats to cross rivers, walk around mountains, and climb in and out of deep valleys. Bridges have to be strong. They also need to take boats, road transport, and trains across rivers, valleys, and other difficult terrains. यानी कि ये जो bridges होते हैं, usually आपको पानी के ऊपर दिखाई देंगे, rivers के ऊपर, जो एक जगह से दूसरी जगह आपको बड़ी ही आसानी से पहुंचाने में हेल्प करते हैं। या आपको ऐसी difficult terrains यानी कि ऐसे plains या mountainous एरिया में भी दिखेंगे जहां पे आप पैदल नहीं चल सकते, तो वहां पे आपको एक टेरेन से दूसरी टेरेन में पहुंचने के लिए बीच में ब्रिज बना दिया जाता है। Utility of bridges. The bridges are very useful. They help to avoid traffic jam. यानी कि आप ब्रिज की मदद से ट्रैफिक जाम को अवॉइड कर सकते हैं। Cut down ट्रैफिक कम हो सकता है। शॉर्टन ट्रेड रूट्स, यानी कि आप ब्रिजेस की मदद से जो लंबे लंबे रास्ते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि आपका सामान जहां पे भी आपको पहुंचाना है बड़ी आसानी से जल्दी पहुंचा सकते हैं। रिड्यूस ट्रैवलिंग टाइम, आपका ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। Both the people as well as the heavy vehicles are able to cross over the bridges. Structure of the bridge is an important factor. It determines the quality and strength of the bridge. यानी कि आपके हल्के से हल्के सामान से लेकर भारी से भारी जो ट्रक्स होते हैं जिसमें सामान लोडेड रहता है, वो भी ब्रिज कैरी कर सकता है। एक ब्रिज किस मटेरियल से बना है, किस टाइप का है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज अगर आपका ब्रिज बहुत वीक होगा तो भारी भारी लोड को वो नहीं संभाल पाएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। Different types of bridges. Bridges are of many types and are built over canals, roads and railways. यानी कि आपके अलग अलग टाइप के ब्रिजेस होते हैं, कुछ रेलवेज के ऊपर बनते हैं, कैनाल्स के ऊपर बनते हैं और अलग अलग जैसे कि आपके रोड्स के ऊपर भी बने होते हैं।
arc bridge. It is an old type of bridge but very strong. It is made by semicircular structures called arches. It spreads weight outwards and downwards around the whole length of each arc. Earlier, these bridges were made of stones and bricks. Now they are made of steel, concrete and bricks. Greeks had built numerous arc bridges in the past. A lot of these can be seen in Italy. Also, Teesta Bridge in Sikkim, India is one of the oldest arc bridges in Northeast. सबसे पहला आपका आता है आर्क ब्रिज. आर्क ब्रिज जो होता है वो आर्क की शेप का होता है, जो इस तरीके से राउंड आपको दिखाई देगा. ये बहुत ही पुराने टाइप के ब्रिजेस होते हैं. यूरोपियंस ने हमारी कंट्री में अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाए थे. और उसके बाद आज के टाइम में आपको सीमेंटेड ब्रिजेस यानी कि उससे स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस दिखाई देंगे. नॉर्थ ईस्ट सिक्किम में तीस्ता ब्रिज है जो सबसे ज्यादा पुराना ब्रिज है इंडिया में. आर्क ब्रिज का एग्जाम्पल. Cantilever bridge. It is a balanced projecting structure built using cantilevers. Cantilever is a horizontal beam supported at one end. It carries the load on the other end or along its length. In these bridges, separate cantilevers are joined by the short spans of steel. Howrah Bridge, Rabindra Setu in West Bengal is India's busiest cantilever bridge. जडुकट्टा ब्रिज इन मेघालय इज द लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज इन इंडिया. तो आपके जो कैंटिलीवर ब्रिजेस होते हैं ये आप देखेंगे आपको इसमें मल्टीपल वायर्स दिखाई देंगी, स्टील से बनी हुई वायर्स जो एक सेंटर पॉइंट में जाके मिल जाती हैं और वहीं से जो पूरा ब्रिज का लोड होता है वो कैरी होता है. तो इनको कैंटिलीवर ब्रिजेस कहा जाता है. उन वायर्स जो स्टील की वायर्स होती हैं उनको कैंटिलीवर कहा जाता है. वेस्ट बंगाल का जो हावड़ा ब्रिज है वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है और मेघालय का जो कैंटिलीवर ब्रिज है वो सबसे ज्यादा लंबा है. सस्पेंशन ब्रिज. It is the longest type of bridge. It is used to span wide rivers or bays. It is made using strong cables. The cables that support the bridge are made from strong steel wires twisted together. These cables hang from high towers on either side of the bridge. The modern suspension bridge can be more than 2 kilometers long. Dwaki Bridge over Pyan River and Lakshman Jhula at Rishikesh in India are the examples of suspension bridge. तो suspension bridge आपके वो होते हैं जो आपको usually rivers के ऊपर या लंबे लंबे बेस के ऊपर दिखाई देंगे, water bodies के ऊपर. ये 2 किलोमीटर से भी लंबे लंबे हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं. ये स्टील की वायर्स को ट्विस्ट करके और ज्वाइन करके बनाए जाते हैं और ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं. ऋषिकेश में जो आपका लक्ष्मण झूला है वो एक सस्पेंशन ब्रिज का ही एग्जाम्पल है. Cable stayed bridge. This bridge is like suspension bridge. It is held up by cables. However, in a cable stayed bridge, less cable is required and the towers holding the cables are shorter. यानी कि ये भी एक सस्पेंशन ब्रिज की तरह ही दिखेगा लेकिन इसमें जो वायर्स होती हैं स्टील वायर्स वो सस्पेंशन ब्रिज के कंपैरिजन में छोटी होती हैं और कम होती हैं. द विद्यासागर सेतु इन कोलकाता इज द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया. इट इज मेड ऑफ स्टील एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट. यानी कि आपका विद्यासागर सेतु जो कि कोलकाता में है आपका स्टेड केबल स्टेड ब्रिज का ही एक एग्जाम्पल है और ये काफी लंबा है. Girder Bridge. It is the simplest and the oldest type of bridge. It is made of horizontal beams called girders. These are supported by pillars at each end. The pillars bear the load of the beam. In a modern beam bridge, large number of pillars are used to support the beam. तो जो गर्डर ब्रिज होते हैं ये सबसे ज़्यादा पुराने टाइप के ब्रिज हैं और काफ़ी सिंपल तरीके से जो बीम्स होती हैं उनके साथ बनाए जाते हैं. ज़्यादा लंबे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, रोड्स के ऊपर देखने को मिलेंगे एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाने के लिए. So the bridge does not become weak. The flyovers and the pedestrian bridges are examples of beam bridge. जो आपको usually आपको roads के ऊपर भी दिखाई देते हैं, जो आपको road के एक साइड से दूसरी साइड पहुंचाने के लिए यूज करे जाते हैं, या फिर आपके जो flyovers होते हैं ये भी beam bridges के ही example हैं. Key fact: Akashi Kaiko in Japan is the longest suspension bridge in the वर्ल्ड. यानी कि जापान का जो एक ब्रिज है आकाशी काइको ये सबसे ज्यादा लंबा एक ब्रिज है. सो स्टूडेंट्स, हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन आज मिली होगी. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस है वो आपको खुद से करनी है.